Hallelujah. Praise the Lord. Let's be seated in the presence of the Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Are you happy? क्या आप सब खुश हैं? Lot of testimonies. All glory to our Lord Jesus बहुत Christ. सारी गवाही, सभी आदर और महिमा परमेश्वर यीशु को मिले. Amazing miracles. बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुए हैं And thank you all for praying. और आप सभी जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की उनका Thank you for धन्यवाद. partnering in the spirit with me. हाँ, मेरे साथ आत्मा में इकट्ठा सहभागी होने के लिए धन्यवाद. Lives were touched. जिंदगियां छू गई हैं, बदल I गई हैं. know that they'll never be the same again. मैं जानता हूँ कि वो Praise वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Well, it's just the beginning. ये सिर्फ शुरुआत है. We're going to touch the nations of the world हम इस संसार की सभी राष्ट्रों को छूने वाले हैं. with the prophetic, with the healing, with the deliverance. भविष्यवाणी के शब्द से, चंगाई से और छुटकारे के द्वारा. Now let's go into the Word of God. आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाते We are हैं. on the last Sunday of April. हम अप्रैल के आखिरी रविवार में हैं. Praise Jesus. प्रभु की स्तुति हो. And next Thursday is 1st of May and we will have our first day prayer. और अगला गुरुवार जो है वो पहला मई है और हमारे महीने की पहले तारीख की जो प्रार्थना होती है वो होने वाली है. And we will have it at 11 a.m. Not 7, 11 a.m. और वो सुबह 7 बजे नहीं तो सुबह के 11 बजे होगी. Success Sunday 13. सफलता रविवार 13वां Praise भाग. God. We lost 2 Sundays in the Holy Week. हमने पवित्र हफ्ते में 2 रविवार छोड़ We दिए. had a Palm Sunday and then we had Resurrection Sunday. डालियों का रविवार था और पुनरुत्थान का रविवार था. Hallelujah. हालेलुया. Now we have come to Success Sunday 13. और हम सफलता रविवार 13 भाग पे आ चुके हैं. So I'm going to make it a very small sermon. Remember, every time I say small, so pray. मैं बहुत छोटा संदेश बोलूंगा. मैं Okay. हमेशा जब I'm छोटा going to बोलता preach a हूँ long sermon. मैं बहुत लंबा उपदेश देने वाला हूँ आज. That means it's going to be short. मैं आशा करता हूँ छोटा रहेगा आज. Look at someone and say, success is inside you. किसी की ओर देखिए और कहिए कि सफलता आप में है. Look at one more person, different person, and say, success is inside you. और किसी और के पास देखिए कहिए कि सफलता आप में है. Look at one more person, a different person, and say, success is inside you. एक और तीसरे व्यक्ति की ओर देखिए और कहिए कि सफलता आप में है. Hallelujah. हालेलुया. Let me look at you and say, success is inside you. मैं आपकी ओर देख के कहता हूँ सफलता आप में है. Hallelujah. हालेलुया. You know, when God made the trees, when He created trees, जब भी परमेश्वर ने पेड़ बनाए, team, if you can put a picture of a nice tree with fruit or something, or a mango tree with fruit, it'll be great. Okay, until the picture comes, listen to me. ध्यान से सुनिए. God made trees. परमेश्वर ने पेड़ बनाए. Mango tree, jackfruit tree, all kinds of trees, plants, everything. सभी प्रकार के वृक्ष बनाए, सभी प्रकार के पेड़ बनाए. Okay? Now let's say a coconut tree or a mango tree. अगर हम ऐसे कल्पना करते हैं एक आम का पेड़ या एक नारियल का पेड़, Do we see them very common in our place? क्या हम Yeah. बहुत आसानी से इनको देखते हैं हमारी जगह में? You've seen coconut trees? आपने नारियल के पेड़ trees? देखे हैं, आम के पेड़ Great. देखे हैं, अच्छा है. So beautiful coconut comes out. बहुत सुंदर नारियल आता है And the tree is not, you know, so big also. It's just probably 1 foot diameter. और नारियल का पेड़ इतना बड़ा भी नहीं होता है. उसका जो पेड़ होता है वो सिर्फ 1 फीट की ही ज्यादा उसकी चौड़ाई होती है. Patli kamar. But it goes all the way up. Like prophet. Slim waist. The coconut tree goes up. प्रॉफिट की जैसे पतली कमर के साथ वो नारियल का पेड़ बहुत ही ऊंचाई पे But जाता you है. see the fruit, each one is so big. लेकिन जब आप उसका फल देखते हैं वो हर एक फल इतना बड़ा होता है. Have you seen people tree? क्या आपने पीपल का पेड़ देखा है? It'll be big. Fruit will be small. वो इतना बड़ा रहता है लेकिन उसका फल जो रहता है बहुत छोटा रहता है. Small. बहुत छोटा है. Just kidding, just kidding. Okay. मजाक कर रहा हूँ सिर्फ. So we see trees and we see them give beautiful fruit. हम पेड़ों को देखते हैं और वो बहुत सुंदर फल देते हुए देखते हैं. Now, अभी the way God made the tree, जिस let's प्रक- analyze it.
जैसे परमेश्वर ने ये पेड़ों को बनाया उसके बारे में हम Let's सीखेंगे। speak in tongues for 30 seconds. अन्य भाषा में 30 सेकंड के लिए बात कीजिए। लेहे ब्रेसे खचोरो लोरो ब्रेही सीखेंदने महाजाराला का सोलो ब्लेखे सीही ही वाजागाला का सुको No, I don't hear you. That means you can do better. इससे बेहतर कर सकते हैं आप। You can do better. इससे बेहतर कर सकते हैं आप। You can do better than इससे that. बेहतर कर सकते हैं आप। इससे बेहतर कर सकते हैं आप। लेहे बेजे टेकेरे लरिया जोलो ब्लाखासी आंजारा कांदो जेहे Rota kaba haba sete. Amen. Amen. Clap your hands for Jesus. तालियां बजाइए यीशु के लिए। Not like. No, stop. रुक Clap your जाइए। hands for Jesus. यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। Praise the Lord. प्रभु Praise की God. स्तुति Thank हो। you. धन्यवाद। You have to be alert in the house of God. आपने परमेश्वर के घर में बहुत सतर्क रहना, Because you came to worship Him, not to insult Him. क्योंकि आप यहाँ पे आराधना करने आए हैं, उसको शर्मिंदा करने नहीं। See, when we go to worship, जब हम आराधना करने जाते we हैं, have come to honor God. हम परमेश्वर को आदर देने आए हैं। Somebody who has come to honor God shouldn't be sitting like this. कोई अगर यहाँ पे परमेश्वर को आदर देने आए तो ऐसे You didn't पैर come के to ऊपर sleep. पैर रखे नहीं बैठना है, सोने के लिए नहीं It's आए। not relaxing time. The word of God is a meditation time. ये आराम का समय नहीं, तो परमेश्वर के वचन के मनन करने का समय And है। meditation is honoring God. और मनन करना ये परमेश्वर को Every सम्मान part देना of है। the service is worship unto God. हर एक हिस्सा इस सभा Giving का his जो है worship वो to God. परमेश्वर को सम्मान देने का, Singing ध्यान his worship देना, to God. गाना गाना, Word of God. परमेश्वर का वचन। We honor His word. We celebrate His word. हम उसके वचन को आदर देते हैं और उसका जश्न So मनाते church, हैं। be alert. We are not here relaxing. कलीसिया ने सतर्क रहना, यहाँ पे आराम के लिए नहीं आए हैं। Every part of it is worship. हर एक हिस्सा जो है वो आराधना We have ही to है do it very diligently. और बहुत अच्छे से निष्ठा से वो करना है हमें। Amen. आमेन। God made trees परमेश्वर ने वृक्ष बनाए such a way इस तरीके से it gives amazing fruit. कि वो बहुत अद्भुत फल देते हैं। Well, not just fruit. सिर्फ फल नहीं, Have you seen trees like in Bangalore? We have trees on the roadsides. क्या आपने पेड़ देखे हैं? बैंगलोर के रास्तों पे आपको बहुत पेड़ And those दिखेंगे। trees may not be a fruit-bearing tree. शायद वो पेड़ जो हैं And वो फल देने वाले ना Especially in हो। Bangalore, we have flower-bearing trees. खास करके बैंगलोर में आपको फूल देने वाले पेड़ And there दिखेंगे are other kinds of trees. और बहुत अलग प्रकार के भी It is पेड़ होते simply हैं। beautiful to look at. वो How many बहुत of you agree? दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। They're कितने सारे just सहमत हैं? beautiful. बहुत सुंदर है, Odd shapes. अलग अलग उनका Beautiful. दिखावा होता है, It's बहुत simply सुंदर, amazing to look at. बहुत अद्भुत है देखने के लिए। How many of you enjoy just watching trees? कितने लोगों को मजा आता है सिर्फ पेड़ों Admiring को them, देखने like- के लिए, उनकी सराहना Yeah. करने। Bangaloreans have this great pleasure of admiring trees. बैंगलोर वासी जो हैं उनको बहुत अच्छा है कि वो प्रशंसा कर सकते हैं ऐसे पेड़ों का। Hallelujah. Look at them. We have these in our city. ये जकरंदा पेड़ जो होता है ये हमारे पूरे शहर भर में है। Wonderful. Now, this is the point that I want to drive. और ये मुद्दा मैं आपको बताना चाहता Look हूँ। at the trees. ये पेड़ों की ओर देखिए। The tree ये पेड़ is designed to bring everything from within it. वो ऐसा रचा गया कि उसके Can अंदर you see से it? वो सब चीजें बाहर ला पाए। See, no tree is having a tie-up with someone. ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ किसी और के साथ जुड़ जाता है कुछ पाने Brother, के लिए। can you please supply me some nice stems? भाई, आप मुझे कोई अच्छी शाखाएं दे सकते हैं क्या? And having a tie-up with someone, just give me best leaves. और किसी और के साथ उन्होंने वो जुड़ चुके हैं कि सिर्फ अच्छे पत्ते देना मुझे। And in right season, just give me the right amount of fruit. I'll just tie them all around. और सही मौसम पे मुझे अच्छे फल देना, मैं उसको बस बांध लूंगा अपनी आप पर। Do they do them? क्या ऐसे करते हैं? Are they taking things from outside, inside? कि वो क्या वो बाहरी चीजें अंदरूनी See the जगह design पर of लेते हैं? God. परमेश्वर की रचना देखिए। Everything in that tree comes from within it. हर एक चीज उस पेड़ में उसके अंदर से निकलती है। Hallelujah. Everything in the tree comes from within it. हर एक चीज वो पेड़ में उसके अंदर से उत्पन्न होती है। Everything comes from within it. हर एक चीज उसमें से उत्पन्न होती है। The teak wood tree brings that amazing teak from within. और टीक वुड का जो पेड़ है वो उसके अंदर से From वो within. वाला लकड़ी लाता है। Hallelujah. A banana plant, केले का पेड़, you know, it's not a tree. वो पेड़ नहीं है। Do you know what variety banana plantain is?
क्या आप जानते हैं उसका प्रकार क्या होता है? I heard a long time ago. I hope it is not changed. मैंने Because बहुत समय पहले science सुना keeps था, changing आशा everything. करता हूँ कि वो बदला ना हो, विज्ञान बदलता The last I heard was it belongs to grass category. पिछले बार जब मैंने सुना Grass. था कि वो घास के प्रकार में पड़ता है, Plantain is a grass category वो ऐसे बनाया गया है कि वो घास के प्रक्रिया में या Huge घास के grass. प्रकार में आता है। with sweet fruit. इतने Wow. मधुर उसके फल होते हैं। Does it have any tie-up? क्या उसका कोई मिलजोड़ है किसी के साथ? Okay, you might say it is getting it all from the soil. आप कह सकते हैं कि वो जमीन से सब चीजें पा Wait a रहा है। minute. रुकिए एक सेकंड। Here is mango tree. यहाँ पे आम का फल है, Next is coconut tree. फिर नारियल का पेड़ है, In the same farm, then we have chiku tree. और फिर उसके बाजू में ये सपोटा का पेड़ है, And then we have guava tree. और फिर उसके बाद में अमरूद का All पेड़ these है। trees are connected to same ground. और सभी ये पेड़ वही Imagine. जमीन के साथ जुड़े हैं। When they are pulling it from the ground, now suddenly mango tree got bananas. अचानक जब वो पेड़ उसको जमीन से उखाड़ते हैं तो वहां से क्या केले Is निकलेंगे? it pulling it from the ground? क्या वो जमीन से खींच रहा है? No. नहीं, Otherwise, there will be confusion, fight among the trees. Hey, that's my fruit. Give me. They're pulling नहीं inside. तो पेड़ों में झगड़ा हो जाएगा कि ये मेरा फल है, मुझे दे दो। No. नहीं, Where is this fruit coming from? ये फल कहाँ से आ रहा है? Where is it coming from? कहाँ से आ रहा है? From within. अंदर से। Where is the wood coming from? ये लकड़ी कहाँ से आ रही है? From within. अंदर से। Do you know, recently, I also learned one more thing. अभी हाल ही में मैं एक और चीज सीखा That in हूँ the outer space, where, researches are being done in Mars and Moon, things like that. अंतरिक्ष में जहाँ पे मंगल ग्रह वगैरह और चांद के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रही है, There are a lot of elements that is available. बहुत gases सारे available. तत्व है जो वहाँ पर हैं, बहुत सारे गैसेस अवेलेबल हैं। Lot of chemicals and elements we see here is also outside there. बहुत सारे तत्व जो यहाँ पर हम देखते हैं धरती पे वो वहाँ पर भी हैं। Like gold, titanium, different kinds of chemicals are there outside in space. जैसे कि सोना या कोई और धातु वो उधर भी अंतरिक्ष में है। And today, after like 100 years of research, the scientists have told what is the rarest and or impossible material to be seen in the outer space. और 100 से ज्यादा साल के बाद संशोधन के बाद में जो तत्वज्ञानी है वो कह रहे हैं कि एक ही चीज है जो आपको अंतरिक्ष में नहीं मिलेगी, It's impossible. वो असंभव है। Guess what it is? जानते हैं क्या है? Wood. लकड़ी। The scientists today have mentioned that wood is impossible to get anywhere outside in the universe. आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरे अंतरिक्ष में बाहर असंभव है There are कि आप chemicals. लकड़ी पाएं। There are elements. धातु Wood is हैं। impossible. धातु हैं, बहुत सारे तत्व हैं, Hallelujah. लेकिन लकड़ी आप नहीं पाएंगे। Where is this tree bringing it out of? ये पेड़ कहाँ से बाहर निकाल रहा है? Where is it getting it out of? ये कहाँ से वो खींच See कर the निकाल great रहा है? banyan tree. और महान वो जो बरगद का पेड़ है, Where did it grab the wood from? ये वो लकड़ी कहाँ से ले रहा है? Say from within. कहिए अंदर से। Amen. आमेन। It is getting it from within. Let's read the कह रहा scripture. है अंदर से। Let's go हम to वचन Genesis देखते हैं। quickly. उत्पत्ति देखते हैं। Chapter 1, पहला verse अध्याय 11 and 12. 11 और 12 आयत। Then God said, फिर परमेश्वर ने कहा, let the earth bring forth grass, पृथ्वी से हरी घास उत्पन्न हो, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth. तथा बीज पाने वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष जिनके बीज भी उनमें हैं, एक एक जाति के अनुसार हो पृथ्वी पर उगे। And it was so. और वैसा ही हुआ। And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. तो पृथ्वी ने हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपने अपनी बीज हो और फलदायी वृक्ष जिनकी अपनी ही जाति हो, उस अनुसार उगे, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। So when God made the tree, तो जब भी परमेश्वर ने पेड़ बनाए, He put the root in it. उसके अंदर उसने उसके रूट्स बनाए, He put the stem in it. उसकी शाखाएं डाली, He put the leaves in it. उसके अंदर पत्ते डाले, He put the wood in it.
और लकड़ी डाली He put the branches in it. और शाखाएं He डालियां put the डाली fruit in it. और फल लगाए He put the seed in it. और उसके अंदर बीज भी And then डाला again he put a tree in the seed. और फिर वो बीज के अंदर एक Wow. और पेड़ और एक और वृक्ष डाला Again he put the tree in the seed. और फिर से वो पेड़ को उस बीज के अंदर डाला. So I want you to see the design of God. तो मैं आप चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की इस रचना को निर्मिति को देखें. God's design, he puts everything you need in life inside you. परमेश्वर की निर्मिति में हर एक चीज That जो is how आपको God makes चाहिए things. वो आप में डालता है. Hallelujah. Hallelujah. It's in his creation. ये उसकी निर्मिति में है. Amen. आमेन. Now let's analyze a lion. एक सिंह की ओर देखते हैं. Okay? A lion. सिंह. When God makes a lion, जब भी परमेश्वर एक सिंह को बनाता है, a lion doesn't go to a school of how to become a lion. सिंह एक स्कूल नहीं जाता, पाठशाला नहीं जाता सीखने के कि वो कैसे Only सिंह बने. humans are going to school to सिर्फ get schooled इंसान जो because they है, are unschooled. सिर्फ इंसान जो है वो पाठशाला जाते हैं क्योंकि वो सीखे नहीं हैं. You see, a peacock doesn't go to a beautician course. एक मोर जो है वो ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए नहीं जाता. No. नहीं. The cuckoo doesn't go for a singing class. और जो कोयल है वो गाने के क्लासेस नहीं जाती. Hallelujah. हालेलुया. Because they have it within them. क्योंकि वो उनके अंदर बसा हुआ है. Are you there? हालेलुया. You know, an eagle doesn't go for a flying course. और चील जो है वो एक उड़ान की क्लासेस के लिए नहीं जाती. Hallelujah. So look at the lion. सिंह की ओर देखिए. The lion has its boldness coming from inside. सिंह के अंदर ही उसका धैर्य, उसका साहस छुपा हुआ है. Its strength, its muscle and power comes from within. उसकी शक्ति, उसका सामर्थ उसके अंदर से ही आता है. Ask why? Why? पूछे क्यों? क्यों? Because it was given. क्योंकि वो दिया गया था. Hallelujah. हालेलुया. It was given to the lion. वो दिया गया था सिंह को. Look at the elephant. एक हाथी की ओर देखिए. Very, very strong. बहुत ही शक्तिशाली. So tall, so big, so mighty. इतना ऊंचा, इतना बड़ा, इतना महान. It can send the lion flying. वो एक सिंह को ऐसे उड़ा सकता है. It can make a tree fly. वो एक पेड़ को यहाँ से वहाँ उखाड़ सकता So है. powerful. इतना शक्तिशाली. Where does it come from? कहाँ से आता है? Say from within. कहिए अंदर से. From within. अंदर से. From within. अंदर से. Hallelujah. So I want you to understand this powerful truth from the word of God. मैं चाहता हूँ कि आप ये परमेश्वर का सामर्थ उसके शब्द के द्वारा समझे. So not just the lion and the tree, God made everything by putting what it needs inside it. तो सिर्फ सिंह या पेड़ नहीं, तो हर एक चीज परमेश्वर ने ऐसे बनाई है कि उसके अंदर जो उसको चाहिए वो है. Hallelujah. हालेलुया. But I also know, you kind of know this. मैं भी जानता हूँ कि आप भी ये शायद जानते होंगे. Even an unbeliever can realize this. एक God has, or the nature has put everything inside it. एक अविश्वासी भी ऐसे जानता हो कि हाँ परमेश्वर ने ऐसे रचा है और पूरी निर्मिति ऐसे ही आती है. But just thinking this philosophy is not enough. लेकिन ये जो सीख है वो ऐसे ही सोच कर काफी नहीं है. It's not enough. वो काफी नहीं है. Now, let's get to the truth. आइए सच्चाई की ओर जाते हैं. God made you and me not just with the ability to dominate the world, but He made us like Him. परमेश्वर ने आपको और मुझे सिर्फ ऐसे नहीं रचा कि हमारे पास क्षमता है अधिकार करने का संसार पे. Clap your hands and give Jesus उसके हिसाब praise से हमें for रचा. making you like Him. परमेश्वर को तालियां बजाकर स्तुति Hallelujah. दीजिए कि उसने Thank God आपको and say, उसके हिसाब से thank you बनाया. for making me like you. कहिए धन्यवाद कि मुझे तेरी जैसे That means I बनाया. am like you. क्योंकि मैं तेरे जैसा I हूँ. can do everything my daddy can do. मैं हर एक चीज कर सकता हूँ जो मेरा पिता कर सकता है. Hallelujah. Hallelujah. You are made like God. तो आप परमेश्वर के जैसे बनाए हैं. Praise God. But see, though we say all these nice things, motivational things, somehow we see that people have ended up being failures, victims, and get into all kinds of trouble, see no success, see no victories, and they queue up here and there. How do I get my portion? ये सब चीजें जानते हुए भी आप में से कई सारे ऐसे हैं जो या लोग ऐसे हैं जिन्होंने हार देखी है और अंदर ही दुखद जीवन जी रहे हैं. Let me show you why this happens. मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है. This happened because of the fall of man. ये इसीलिए हुआ
क्योंकि मनुष्य गिर Say गया। to two people around you, Adam fell कहीं आदम गिर गया in the Garden of Eden. And ईदेन when he के बाग fell, में, जब वो गिरा, when he fell, say, when he fell, कहिए जब ही गिरा, his mind fell, उसका मन his गिर heart गया, fell, उसका हृदय गिर his गया, character fell, उसका चरित्र गिर his गया image fell. और उसकी अस्तित्व गिर गया। Hallelujah. हालेलुया। Listen to me. सुनिए गौर से, Ever since man fell in the garden जब से मनुष्य हार गया In उस बाग sin, में पाप के द्वारा and then into the curse, और फिर श्राप में, man is living under a victim cycle. मनुष्य एक दोषी की मनस्थिति में जी रहा Okay? है। But you see, no lion or tree fell into sin. लेकिन सिंह या पेड़ कोई पाप में नहीं गिरे। Therefore, इसीलिए their capacity has never changed. उनकी क्षमता कभी बदली नहीं है। They never sinned. उन्होंने कभी पाप नहीं Do you किया। know why God suggested to Israel to bring lamb and dove and other things as sacrifice? Because there is no sin in them. आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को क्यों कहा कि आप मेमना लाओ या फिर कबूतर लाओ, क्योंकि उनके अंदर कोई भी पाप नहीं है, दोष नहीं है, You see, there is no sin in them. उनमें कोई भी पाप नहीं है, So their ability never changed. इसलिए उनकी क्षमता कभी बदली But नहीं। unfortunately, they are to be dominated by us. लेकिन दुखद चीज ये है कि उनके ऊपर हमने अधिकार करना We था। are their boss. हम उनके बॉस हैं And the boss fell. और बॉस जो है So वो they गिर are गया। all suffering इसलिए because वो of us. सभी दुख में की परिस्थिति में We are है हमारी वजह contaminating से। the world now. हम पूरे संसार को खराब कर रहे हैं, Polluting it. उसको खराब कर रहे हैं Shedding blood on it. और वहाँ पे लहू बहा रहे हैं, Cursing everywhere. यहाँ वहाँ श्राप बोल रहे So this हैं। creation is suffering because of fallen man. तो निर्मिति वो गिरे हुए इंसान के वजह से सहन कर रही So है। from the time Adam fell तो जब से आदम गिर गया and Eve fell, और हवा गिरी, their hearts opened to the devil. उनके हृदय जो है वो शैतान के लिए खुल गए, Okay? Because they obeyed the serpent, they ate the fruit, they came in obedience, and from that day their hearts opened to the devil. क्योंकि उन्होंने वो सांप की आज्ञा जो है वो मानी और वो फल खाया, और तब से उस अनाज्ञा के वजह से वो शैतान From के that हाथों में गए। time, we have inherited from the devil what is called carnal mind. तब से शैतान की ओर से हमने वारिस पाया है इस मन को जो है भौतिक मन, Or fleshly mind, भौतिक मन, carnal mind. शारीरिक मन। Okay? How many of you know this? कितने लोग ये जानते हैं? You know this. And this carnal mind, the Bible says, is enmity to God. Let's see that from book of Romans. और रोमियो की किताब में हम देखते हैं I कि think chapter ये 8, जो है The परमेश्वर का carnal mind विरोधी, is enmity to God. It does not surrender or yield to the laws of God, the law of God. तो भौतिक मन जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को अधीन नहीं जाता या उसको मानता नहीं है। See what Apostle Paul says in Romans 8:7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। So then those who are in the flesh cannot please God. और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Hallelujah. Hallelujah. So look at this. The Bible is giving a definition. तो वचन जो है वो इसको एक व्याख्या दे रहे It's हैं। calling this fallen mind as carnal mind. वो इस गिरे हुए मन दशा को शारीरिक मन कह रहा है। Carnal is nothing but flesh. शारीरिक उसको कहा जाता है। Okay? And you see, it says, for it is not subject to the law of God. That means this carnal mind cannot understand, is not compatible with anything that belongs to God. तो ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को अधीन नहीं है, तो इसका ये अर्थ है कि वो उसके साथ एक नहीं है, In सहमत simple नहीं हो words, सकता है। साधारण शब्दों The में carnal mind is like a cassette tape recorder. ये जो शारीरिक मन है वो एक कैसे टेप रिकॉर्डर की It जैसे है। cannot read CD. वो सीडी को नहीं Can you put a कर CD in a cassette player? क्या आप सीडी एक कैसेट प्लेयर में डाल Can you सकते put a हैं? pen drive in a CD player? क्या आप एक पेन ड्राइव को एक सीडी प्लेयर में डाल सकते Can हैं? you? क्या आप कर सकते हैं? So your carnal mind is like a cassette player. तो ये जो शारीरिक मन है या भौतिक मन है वो एक कैसेट प्लेयर की जैसे God's है। mind is like a CD. परमेश्वर का मन जो है वो सीडी की They are जैसे है। not compatible.
वो एक नहीं है, They सहमत work नहीं है। differently. वो अलग तरीके से कार्य करते हैं। But Apostle Paul goes on to say that the cassette player, the carnal mind, is enmity to God. और इससे आगे जाके प्रेरित पौलुस ये कहते हैं कि शारीरिक मन जो है वो परमेश्वर का विरोधी है। Watch this very carefully. ध्यान से देखिए, It says the carnal mind is enmity to God. शारीरिक मन जो है परमेश्वर का बैर है। That means when the devil made Adam and Eve eat the fruit, इसका ये अर्थ है कि जब भी शैतान ने आदम और हवा को वो फल खाने लगाया, the fruit of good and evil, वो जो फल अच्छा और बुराई का है, the Bible says when they ate, when Adam and Eve ate it, they didn't grow extra hand. बाइबल ने कहा कि जब भी उन्होंने वो कहा कि वो एक और हाथ बढ़ गया, ऐसे नहीं They है। got 2 extra legs. दो और पैर मिल गए, They ऐसा started नहीं becoming like spiders. है। वो मकड़ी के जैसे बने, ऐसे नहीं Yeah? है। What happened to them? Tell me क्या the हुआ visible उनको? change that we saw. जो देखने या दर्शाने वाला जो बदलाव है वो You have मुझे to change the बताइए। setting like that Wednesday, Pastor D. May God help you on your way. Listen, सुनिए listen. सुनिए, What was the visible change that we saw? दर्शाने वाला या देखने वाला बदल क्या था I उनमें? feel like I've put a kerchief on my mouth and I'm speaking. That's how. Okay. Or I don't know if it's only me or it's for the audience. Okay. It is like that. You see? Boom, boom, boom. That's the frequency. That's on highlight. Okay. All right. Tell me, answer. क्या बदल देखा आपने? What is the visual change? जो देखने वाला बदल था वो क्या था? Nakedness. Wow. Okay. Nakedness. वो And नग्न थे fear. They feared God. और वो Fantastic. डर आ गया, Shame, fear, shame, hiding from God. डर Excellent. या शर्मिंदा हो गए, Change of mind. उनका मन Exactly. बदल गया Guilt. और खुद को दोषी पाने Their लगे। eyes. Clap your hands उनके for आंखें Brother खुल गए। Ramakrishna. भाई That's the रामकृष्ण answer के I was लिए looking for. तालियां बजाइए। Don't clap like sea lion. Have you seen? Clap like humans. इंसानों के जैसे तालियां बजाइए। Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Again, we have to be alert in the house of God. हमने सतर्क रहना है परमेश्वर के घर में। The first visual important change, the Bible says their eyes opened. सबसे पहला दर्शनीय बदल जो Their था, eyes उनकी open. आंखें खुल गई। Their आंखें खुल eyes गई। open. उनकी आंखें खुल गई। Their eyes opened. उनकी आंखें खुल गई। And what did they see? और उन्होंने क्या देखा? You see, so the number one thing that happened to them is सबसे पहली चीज जो हुई, उनकी आंखें खुल गई। but can I give you a revelation क्या मैं आपको एक that प्रकाशन probably दे for सकता 2000 हूँ years is not discussed. कि जो पिछले 2000 साल इसके बारे में बात नहीं हुई है? Okay? My question to you, मेरा प्रश्न आपको ये है, before their eyes were opened, were they going like this? क्या उनकी आंखें खुलने के पहले वो ऐसे अंधों के जैसे चलते थे? Eve, where are you? हवा, कहाँ हो तुम? Before their eyes were opened, were they walking like this? उनकी आंखें खुलने के पहले क्या वो ऐसे अंधों के जैसे चलते थे? Huh? No. नहीं। Okay, next question. अगला प्रश्न। So their eyes were opened, they could see the tree, तो उनकी आंखें खुलने की वजह से वो पेड़ देखने they could see पाए, the fruit, वो फल देख पाए, they could name all the animals. वो सभी जानवरों को नाम दे पाए। He's still working on it? Okay, good. Okay, so they were seeing everything. वो हर एक चीज देख पा रहे थे। Why didn't they see their nakedness? वो अपनी नग्नता क्यों नहीं देख पाए? So they were not walking blind. तो अंधों के जैसे चल नहीं रहे थे। They could see the tree, they could see the leaves, they could see animals, they could name each other. He could see, even say, my bone of my bone, my flesh of my flesh. Did he see Eve without clothes? वो पेड़ देख पा रहे थे, पत्ते देख पा रहे थे, जानवरों को देख पा रहे थे, वो हवा को देख पाया और कह पाया कि ये मेरे हड्डियों में का हड्डी और मांस है। क्या वो अपनी नग्नता नहीं देख पाए? Answer. उत्तर दीजिए। Huh? That means इसका ये अर्थ है, when it says their eyes opened, जब वो लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई, that statement has to be investigated.
वो वाक्य के ऊपर हमने जांच करनी है, Because they were not walking blind. क्योंकि वो अंधों के जैसे नहीं चल रहे थे। Because before eating the fruit, they never saw themselves naked. They were ashamed and they were trying to hide. क्योंकि फल खाने के पहले वो खुद को नग्न नहीं पा रहे थे, शर्मिंदा नहीं थे या छुप नहीं रहे थे। That means after they ate the fruit, इसका ये अर्थ है कि फल खाने के they बाद lost their covering. वो अपने जो कवच है उसको खो चुके हैं। Tell somebody you need a covering. किसी को कहिए एक कवच की जरूरत है, It's called spiritual covering. उसे कहते हैं आत्मिक कवच। You need a covering. आपको एक कवच की जरूरत But है। when they ate the fruit, the first evidence is they lost it. लेकिन जब भी उन्होंने फल खाया, सबसे पहला चिन्ह जो था वो है कि वो खो चुके हैं वो कवच They को। lost the covering. वो उस कवच को खो चुके हैं। When the prodigal son जब ran away from the house, जब भी उद्धाव पुत्र जो है वो घर से भाग he निकला, was with the pigs. वो सुअरों के साथ When था। he came back home, what was the first thing the father did? वो जब घर वापस लौटा तो पर He उसके gave him a पिता ने क्या covering. किया? उसने उसे एक वस्त्र दिया, कवच दिया। Hallelujah. हालेलुया। Not that he was naked, ऐसा नहीं कि वो नग्न था, but he was ugly. लेकिन वो बहुत गंदा था, He was dirty. वो गंदा था। And the first thing the father did is covered him. और सबसे पहली चीज उसके पिता ने ये की कि उसको ढक दिया। So when they ate the fruit, तो जब भी उन्होंने फल खाया, something left them. कोई चीज उनको छोड़कर The निकल very गई। minute God's covering left them. उसी क्षण परमेश्वर का कवच उन्हें छोड़ निकल And they गया were standing ashamed. और वो शर्मिंदा उधर खड़े थे And they began to be afraid of God, the other answers. और वो परमेश्वर से डर They रहे थे began to hide from God. और परमेश्वर से छिप रहे थे। Suddenly they began to think God is evil. God is going to come and beat me. God is going to kill me. और अचानक वो ऐसे सोचने लगे कि परमेश्वर दुष्ट है और हमको आके मारेगा, हमें डांटेगा। And when God came, और जब परमेश्वर he आया, asked, why are you hiding? परमेश्वर पूछते हैं कि तुम They क्यों said, छुप we रहे were हो? afraid when you came. वो कहते हैं कि हम डर गए See, थे till जब आप that आए। day, they were never afraid of God. तब तक, उस दिन तक वो कभी परमेश्वर से डरे नहीं। So what eyes opened to them? तो कौन सी आंखें खुली उनकी? Carnal eyes. शारीरिक आंखें। Hallelujah. हालेलुया। That means an evil eye opened. इसका ये अर्थ है एक दुष्ट आंख खुल गई। A mind that is against God opened. एक मन जो परमेश्वर के विरुद्ध है वो खुल गया। And this mind, Apostle Paul says, is an enmity to God. और ये मन, Why? प्रेरित पौलुस कहता है ये परमेश्वर का बैरी है। Because क्यों? that fruit, that knowledge in the fruit was designed by Satan to hate God. क्योंकि वो फल और उसके अंदर का ज्ञान वो शैतान ने ऐसे रचा था कि वो परमेश्वर को नफरत करेंगे। It was created to hate God. वो ऐसे बनाया गया था कि वो परमेश्वर को So नफरत people करें। who have that mind are designed to hate God. तो जिनके पास ऐसा मन है वो परमेश्वर को नफरत करेंगे। And God made us in His image. और परमेश्वर ने हमें उसके तरह रचा। So that mind will destroy this image. तो वो मन जो है इस अस्तित्व को बदल Carnal देगा। mind is designed to destroy everything God made. और वो शारीरिक मन जो है हर एक चीज जो परमेश्वर ने रची है उसको नष्ट करता है। That carnal mind is to pervert everything God made. हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई है अच्छी है, उसको ये शारीरिक मन खराब करता The है। Bible says God gave Satan, Lucifer, wisdom परमेश्वर का वचन कहता है कि लूसीफर शैतान को परमेश्वर ने when he was in प्रज्ञता heaven. दी When he was in heaven. जब भी वो स्वर्ग में था। But when he तभी। fell from heaven, लेकिन जब वो स्वर्ग से the गिरा, Bible says Satan corrupted his wisdom. बाइबल कहती है कि शैतान ने उसकी प्रज्ञता को खराब Say किया। Satan corrupted his wisdom. कहिए शैतान ने प्रज्ञता खराब Corruption की। means perversion. और करप्शन जो है उसका ये अर्थ है कि वो खराब की Are गई। you there? It's like a police officer. वैसे कि पुलिस अफसर He's है, given knowledge उसे ज्ञान है for each crime what could be done. हर एक जो What are the अपराध rules? उसके ऊपर क्या करना What are the चाहिए, regulations? What is the नियम क्या paperwork? है, क्या लिखित कागज होने चाहिए। Now he is sitting in the seat. अभी वो उसके सीट पे Now बैठा है instead of helping people, he is now beginning to think how he can make, what is that called? Perversion. और अगर अभी वो वहां पे बैठ के लोगों की मदद करने की और उनके विरोध में जाता है, उसको कहते हैं भ्रष्टाचार। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So human beings inherited this carnal mind. तो इंसानों ने ये शारीरिक मन को मिरास बोलकर And पाया। from the time we have this carnal mind, we think opposite to God's mind. ये जब से हमारे पास ये शारीरिक मन है, तब से हम परमेश्वर के विरोध में ही सोचते हैं। So in the beginning we saw everything that we have to bring forth in life, God put it where?
तो पहले हमने Where? देखा कि परमेश्वर He's ने put it inside us. हर एक चीज जो हमारे लिए है Say it with वो me. हमारे He put it अंदर inside रखी। us. हर एक चीज हमारे अंदर He है। put it inside me. परमेश्वर ने अंदर रचा। Everything I have to bring out. हर एक चीज जो मैंने बाहर लानी है, Business, job, व्यवसाय, art, नौकरी, joy, peace. खुशी, It's all ये put inside of शांति, me. ये सब मुझ में डाली गई है। Hallelujah. हालेलुया। You see, Mr. Gandhi ji, the They- father of this nation, इस राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी, he was carrying the freedom of this nation inside him. वो इस देश का स्वातंत्र उनके अंदर ले चल रहे And थे he could bring it out, और वो बाहर निकाल पाए उसको spread it everywhere, और सभी जगह फैला दिया and establish it on this land. और उसको स्थापित किया इस जगह पर। Hallelujah. हालेलुया। We have it in us. वो हम में है। Everything we need in this life, everything you need in this life, God has put it in you. हर एक चीज जो आपको इस जीवन भर में लगेगी वो परमेश्वर ने आप में रख दी है, बसा दी है। But the problem is, लेकिन कठिनाई ये है, along with it, the devil also put his carnal mind and put those effects in you. उसके साथ ही शैतान ने उसका शारीरिक मन आप में डाला, उसके साथ के जो भी परिणाम है वो भी डाले। Let's go to Matthew 15, verse 16 to 20. मत्ती 15 16 से 20 हम पढ़ेंगे। मत्ती 15 16 से 20। So Jesus said, "Are you also still without understanding? Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? But those things which proceed out of the mouth comes from the heart, and they defile a man." तो परमेश्वर यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं समझे, जो मुंह में जाता है वो पेट में जाता है और उसी के द्वारा बाहर निकलता है, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है वो मन से निकलता है और वो मनुष्य की अशुद्धता करता है। For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witnesses, blasphemies. क्योंकि कुचिंता, हत्या और स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती And है। these are the things which defile a man. But to eat with unwashed hands does not defile a man. यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। So Jesus said to the people, तो यीशु उसके शिष्यों को कह रहा because है, according to their religious tradition, they had to wash hands before eating. क्योंकि उनके धार्मिक रीतियों के हिसाब से उन्होंने भोजन करने के पहले हाथ धोने The चाहिए। disciples were just eating in the field. They didn't have time to wash hands. They began to eat with their hands. और उसके जो शिष्य हैं वो खेत में ही अपना हाथ धोए बिना भोजन कर रहे हैं The religious people got upset. और धर्मी जन जो है वो बहुत चिंतित हुए। Are we not supposed to wash hands before eating? उन्होंने कहा क्या हमने हाथ नहीं धोने चाहिए भोजन करने के He said, पहले? whatever you eat, it goes to the stomach, then it goes out. यीशु ने कहा कि जो चीजें तुम खाते हो वो पेट में जाती हैं और बाहर निकलती हैं। But he said, I will tell you what defiles a man. लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चीजें मनुष्य को He अशुद्ध says, बनाती हैं। what comes out of the mouth, not what goes in. What comes out of the mouth defiles the man. वो कहता है कि जो चीजें मुंह से बाहर निकलती है, जो अंदर नहीं तो बाहर निकलती है, But those वो things मनुष्य को अशुद्ध which करती हैं। proceed out of the mouth come from, why did you skip? लेकिन वो चीजें जो I was still मुंह से reading. बाहर निकलती हैं वो And मनुष्य these को अशुद्ध things करती which हैं। defile a man. Okay. The scripture was there already. But those things which proceed out of the mouth come from, लेकिन जो चीज मुंह से Come निकलती from? है वो मन से निकलती है। see, Jesus, our Lord, believes wholeheartedly that whatever comes from our mouth comes from the heart. यीशु हमारा प्रभु बहुत विश्वास करता है इस चीज पे कि जो चीज हमारे मन में है Because he says वही that हमारे many मुख times. से निकलती है, क्योंकि ये उसने बहुत बार कहा। Jesus said this many times. यीशु ने ये बहुत बार कहा। He talks about our words come from our heart. उसने कहा कि हमारे शब्द जो हैं वो हमारे हृदय Again से he निकलते says, हैं। फिर से वो कहता But है his words which proceed out of the mouth come from the heart. कि हर एक चीज जो मुंह से बाहर निकलती है वो हृदय से आती है या मन से आती है। Another place he called the heart as the treasure box of man. और एक जगह पे उसने कहा कि ये जो हृदय है वो एक इंसान का So what comes out of the जो mouth? खजीना है वो है। What goes inside the mouth? मुंह में क्या जाता है? All those who are sleeping, shout a. You're giving me that effect. Can you talk, please?
क्या आप बात कर सकते हैं मुझसे? Hallelujah. हालेलुया। Thank you. What goes inside the mouth? मुंह के अंदर क्या जाता है? Food. खाना। What comes out of the mouth? और मुंह के बाहर क्या Words. निकलता है? शब्द Where does the निकलते word हैं। come from? शब्द कहाँ से निकलते What's हैं? the problem with the heart? हृदय से, और हृदय में क्या गलती है? It's a carnal heart. वो शारीरिक हृदय है। And Jesus said that carnal heart produces evil thoughts, और- murders, adulteries, fornications. और यीशु कहता है कि वो जो हृदय है उसके अंदर से कुचिंता निकलती है, हत्या निकलती है, स्त्री गमन निकलता है। How many of you in this place say, that has never happened to me, prophet? यहाँ पे कितने लोग कहते हैं ये मेरे साथ नहीं हुआ है प्रॉफिट? I have never had evil thoughts in my heart. मेरे मन में कभी भी कोई भी बुरा I've ख्याल never had नहीं आया। temptations in my heart. मेरे पास कभी भी कोई Okay, so you know प्रलोभन what I'm नहीं talking हुआ। about, right? आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। And when you have those things in your heart, और जब ये चीजें आपके मन में हैं and it also comes out sometimes और वो बाहर निकलती हैं कभी कभी as anger, गुस्से के द्वारा, as words, या शब्दों के as द्वारा, condemnation, या किसी को दोष लगाने as द्वारा, sarcastic statements, या किसी को नीचा दिखाने as द्वारा, prideful statements, या गर्व के वचन के द्वारा, as fearful thoughts. या फिर डर के सोच के द्वारा We communicate that. हम ये चीजें बोलते We हैं। communicate what is put in the heart. हम वो चीजें बोलते हैं जो मन में रखी गई हैं। Millionaire. Okay, thank you. Don't say anything more. Pastor D, has anything been done on this? Sorry? No, it's gone back to how it was in the beginning and little worse than that. I want something to be done. Or can I have a change of mic? Thank you. Hallelujah. One moment. Let me check this. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Any difference? Thank you. Thou have ears. आपके पास कान हैं। Praise the Lord. प्रभु की It's स्तुति much हो। better. बेहतर है, Okay. Better than the bad one. पिछले से बेहतर। If it is not done, I'm going to confiscate the mixer, take it home, and give you all the old one. Thank you. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The carnal, sorry. This is robotic. That one is? Please. God. If I pray to God, He'll get angry. अगर मैं He परमेश्वर said, से "You प्रार्थना prayed for mixer, I gave. Now what is the problem?" 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is too muffled. It has only bass and mid. It has low, mid, high, and the mid and the high mid and the treble is flat. I wish I operated, but I have to preach. Okay. This is how it was last few weeks. This week I'm talking out because I'm not able to tolerate it. Okay, thank you. Listen, सुनिए, let's pray in tongues for 10 seconds. अन्य भाषा में थोड़ा देर बात करेंगे। Father, in the name of Jesus, I rebuke this fleshly disturbances. पिता परमेश्वर यीशु के नाम में ये जो शारीरिक चिंता है और या हमको जो फोकस निकालने वाली चीजें हैं उनको मैं In the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम से। Amen. See, the devil is really upset about this message. शैतान जो है That I can sense in the spirit. मेरी आत्मा में मैं जान चाहता हूँ कि वो शैतान जो है इससे बहुत ही चिंतित है। He just doesn't want this message to come out. वो चाहता है कि ये संदेश बाहर ही ना निकले। If this message comes out, you will come out. अगर ये संदेश बाहर निकले तो आप बाहर निकल जाएंगे। Listen. सुनिए, God has put success inside of you. परमेश्वर ने सफलता आप में डाली He's है। put victory inside of you. विजय आप में डाला है। He's put strength inside of you. शक्ति आप में डाली है। He's put health in you. स्वास्थ्य, He's put a future inside you. भविष्य आप में डाला है। It's all in you. ये सब आप में है। And the Christian must learn to bring it out. और मसीही ने ये जानना है कि इसको कैसे We बाहर have to निकालें। learn to bring it out. ये सीखना है कि कैसे बाहर निकालें That इसे। means we clash with all the old
and religious doctrines. इसका ये अर्थ है सभी धार्मिक जो सिद्धांत है उसके साथ हमने भिड़ना है। Begging God is not the way to success. परमेश्वर से भीख मांगना ये सफलता की ओर You're not नहीं going है। to keep begging God, crying to God all your life for Him to do something for you. जीवन भर आपने रो कर भीख मांग कर परमेश्वर से ये नहीं कहना है कि उसने आपके लिए कुछ करना चाहिए। Jesus Christ demonstrated in the boat. यीशु ने ये नौका में दर्शाया। He didn't cry to God to do something for us. उसने वो परमेश्वर की ओर रोया नहीं No. कि कुछ हमारे लिए करे। Jesus demonstrated what men ought to do. पर में यीशु ने दर्शाया कि इंसानों ने He क्या करना stood चाहिए। up and spoke to the storm. वो खड़ा रहा और उस तूफान से बोला। He didn't make a single prayer. उसने एक प्रार्थना नहीं की। Why? क्यों? Did not Jesus know God is supposed to help us? क्या यीशु नहीं जानता था कि परमेश्वर हमें मदद करना चाहिए? No, Jesus demonstrated God has already helped you by giving you the power. यीशु ने हमें दर्शाया कि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दे दिया है। God has helped you by giving you authority in your tongue. परमेश्वर ने आपको सहायक कर दिया है कि आपके वो जुबान में उसने अधिकार दी है। If you go to if a child goes to the parent and cries saying, why my life is like this, I don't get a salary, I don't have a job, I'm just living a beggar life, the father or the mother will say, all I have given you is a degree. और अगर एक छोटा बच्चा बढ़कर अपने माता पिता की ओर जाके कहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, नौकरी नहीं है, खुशी नहीं है, तो उसके माता पिता कहेंगे कि मैंने तुम्हें डिग्री दी है। I will go to college, I will get one more degree, I will work for the next 50 years of life and take care of you. तुम्हारे जगह पर या मैं जाता हूँ डिग्री एक और बार करता हूँ और अगले 50 साल फिर काम करता हूँ, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं। What the parents gave you is a degree. और माता पिता ने आपको क्या दिया? And in that degree is a job, in that degree is a salary, in that degree is a marriage, in that degree is a future. और उस डिग्री के अंदर आपको एक नौकरी है, आपकी तनख्वाह है, आपकी शादी है और आपका भविष्य है। You have to do something with it. उसके साथ आपको कुछ करना है। RK comes from a very average, poor, middle class family. और आरके जो है वो एक मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। You know, just that lower middle class. या वो नीचे मध्यम वर्ग जो स्तर What है did वो you study, RK? BSc, science. उन्होंने बीएससी किया, But he began to look at his own talents. लेकिन उन्होंने अंदर के कौशल ढूंढने लगे। वो He was interested in marketing. उनको मार्केटिंग पसंद है। So I've had several interviews with him. मैंने उनके साथ काफी इंटरव्यूज किए हैं। I've asked him, how did you come to this place in life? और मैंने उन्हें बहुत बार पूछा है कि आपके जीवन के स्तर पे आप said, कैसे "Prophet, पहुंचे?" I उन्होंने कहा have प्रॉफिट। stood on the street and sold SIM cards. उन्होंने कहा प्रॉफिट, मैं रास्ते पे खड़े रहकर सिम कार्ड बेच He रहा said, था। I have sold TVs in a showroom. मैंने टीवी बेचे हैं एक शोरूम पे। What else? Courier jobs. He's done courier jobs. कुरियर के जॉब्स किए हैं। Then he got into banking. और फिर बैंक में लगे Then he हैं began to sell. और बेचने लगे। You know what? Today he's in the topmost position in the क्या- banking industry. क्या आप जानते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे उच्चतम स्तर पे आज वो खड़े हैं? And I like what he says often. और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो हमेशा ये He कहते says, हैं, Prophet, वो कहते I हैं never प्रॉफिट, wanted to depend on any man. वो कहते हैं प्रॉफिट, मैं कभी भी किसी इंसान पे निर्भर रहना I नहीं believed चाहता in था। hard work. I believe that, I should work hard and come up in life. मैं हमेशा ये विश्वास करता था कि मैंने कष्ट लेके कार्य करके आगे बढ़ना है जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। And today he is carrying a seed of 500 crores in him. और वो अभी उनके अंदर एक बीज ले घूमते हैं जो It's going to come out 500 soon. करोड़ का है और वो बहुत जल्द बाहर निकलेगा। Because क्योंकि- God put it in you. परमेश्वर ने वो उनमें डाला है। He was not even in Christ, but he had the right idea. वो मसीह में थे भी नहीं, लेकिन उनके पास सही योजना थी। And now we can see that God had separated him in his mother's womb. और अभी हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने To उनकी know माँ के Christ. गर्भ में उन्हें अलग किया था परमेश्वर के लिए। That even before he came to a physical church, the mind of Christ was already in his birth. कि वो एक शारीरिक कलीसिया में आने के पहले ही Hallelujah. मसीह का मन उनके अंदर जन्मा था। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। That is why इसीलिए an Ambani doesn't need Jesus to become Ambani. एक अंबानी को जरूरत नहीं है यीशु की कि वो A Bill अंबानी Gates बने, doesn't need Jesus to become Bill Gates. या बिल गेट्स को जरूरत नहीं है यीशु की कि वो बिल गेट्स बने। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूँ? When Jesus came, जब यीशु आया, there were already rich men in the world. पहले
से ही काफी धनी लोग थे इस संसार में। There were already conquerors and kings in this world. यहाँ पे बहुत सारे विजेता थे और बहुत सारे राजा थे। Before Jesus came, there were already scientists in the world. और यीशु के आने के पहले ही बहुत सारे वैज्ञानिक थे। Before Jesus came, there were already record holders in this world. और यीशु के आने के पहले ही यहाँ पर बहुत ही अतिक्रमण करने वाले लोग थे। Jesus did not come to give you and me what we already have. यीशु यहाँ पे आपको और मुझे वो देने नहीं आया जो हमारे पास पहले से ही All है। of this He gave us in the Garden of Eden itself. ये सभी चीजें एदेन बाग के अंदर ही हमें दी गई है। He didn't come to give it back again. ये वापस से देने नहीं आया है। He came to give us freedom from sin. वो हमें पापों से मुक्ति देने आया है। That's what no rich man, no king, no scientist can give. ये ही वो चीज है जो कोई धनी, कोई राजा या कोई वैज्ञानिक नहीं दे He made you सकता। free from the lake of fire. वो आपको उस अग्नि के कुंड से बचा चुका है। He made us free from the devil. वो हमें शैतान से मुक्ति दे चुका है। Hallelujah. Hallelujah. He made us free from the slavery of Satan. वो शैतान की गुलामगिरी से हमें बचा चुका Now है। listen. सुनिए, Now that we are free from the devil, अभी हम शैतान से जैसे मुक्त हो चुके we हैं, can do much better. हम इससे बेहतर कर सकते हैं। We can do much better. इससे बेहतर कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It is because God put everything in man. Man is able to demonstrate it in the world. इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य में चीजें डाल रखी है, बसा दी है, इसलिए मनुष्य इस पूरे संसार में चीजें दर्शा सकता That है। is why worldly people are winning and religious people are failing. इसीलिए सांसारिक लोग जो हैं वो विजेता हैं और जो मसीह हैं वो हारे हुए हैं। Why religious people are failing? धर्मी लोग क्यों हार रहे हैं? Because religious people want to tell God to do everything and they will not do anything. क्योंकि धर्मी लोग जो हैं वो परमेश्वर को कहते हैं कि तुम ये करो, लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते। Worldly people, they simply believe God is there. He will help in the difficult time. Let me work hard. संसारिक लोग जो हैं वो ये विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन मैंने कष्ट करके कार्य करके काम कमाना है। So it is astonishing to see the worldly people have understood the Bible without reading it. तो ये बहुत अद्भुत चीज है कि संसारिक लोगों ने बाइबल न पढ़ते हुए बहुत अच्छे से And जाना है all those who are परमेश्वर के reading the वचन को। Bible, और जो परमेश्वर का वचन पढ़ चुके हैं they close the Bible and make God a servant. वो बाइबल बंद करते हैं और परमेश्वर का अपना God, सेवक बना देते हैं। bring me a bucket of water. परमेश्वर मुझे एक God, बकेट लेकर आओ open पानी this का। door. परमेश्वर ये दरवाजा खोल दो। God, close this lift. परमेश्वर ये लिफ्ट को बंद कर दो। God, my child is running in the road. You stop. परमेश्वर मेरा बच्चा रास्ते पे भाग रहा है, उसे रोको। Child is running in the road. You go. बच्चा अगर रास्ते पे भाग रहा है, आप जाओ। See how we have become slowly. We have learned to make God a servant. हम धीरे से परमेश्वर को अपना गुलाम या सेवक बना रहे हैं, But the success is within you. लेकिन सफलता आप में है। And Jesus said और यीशु ने कहा that all evil is coming from the heart of man. कि हर एक जो दुष्ट चीज है वो मनुष्य के हृदय से निकलती है। And what does it come through? It comes through the mouth. और वो कहाँ से निकलती है? तो मुंह से निकलती है। Very difficult, brother. बहुत कठिन है ब्रदर। Recession, brother. और बहुत रिसेशन है भाई। This is full virus season, brother. ये पूरा वायरस का मौसम है भाई। Every year, brother. हर साल भाई। Don't tell, brother. I got it, brother. भाई मत कहिए, मैं समझ गया भाई। Because क्योंकि you are talking your fear. आप आपके भय के बारे में बात कर रहे You are हैं। talking your bad experiences. आप आपके जो बुरे अनुभव है उनके बारे में बात कर रहे हैं। And you are talking failures. और आप हार के बारे में बात कर You रहे are हैं। talking anger. आप गुस्से का बात कर रहे हैं। You are not talking faith. आप विश्वास नहीं बोल रहे हैं। See, we know to talk all these things, but we don't know to talk faith. How हम is that? ये सब चीजें बोल सकते हैं लेकिन विश्वास नहीं बोल सकते। ये कैसे हो सकता है? How is that we are not able to talk faith? हम कैसे विश्वास की बातें नहीं कर सकते? Maybe you have started building the house शायद आपने घर बांधना शुरू किया and no हो money. और पैसा नहीं है। What are you going to say? आपने क्या कहना है? All the money I need has come. हर एक पैसा जो मुझे चाहिए वो I आ will चुका stand in है। the church and testify. मैं कलीसिया में खड़े रह के उसकी गवाही Praise दूंगा। God. प्रभु की स्तुति हो। It will be more than what I need. जितना जरूरत है उससे ज्यादा It's मिलेगा। called talking faith. ये कहते हैं विश्वास की बातें करना। Oh, but brother, लेकिन भाई I can talk 10 days about what is happening in one day of my life. मैं 10 दिन बातें कर सकता हूँ वो चीजें जो एक दिन में हो रही है। I can talk 10 days. 10 दिन तक बातें That कर means सकता हूँ। imagine my whole life can be told 10 times. If I live 50 years,
500 years I can talk about it. कल्पना कीजिए अगर आप 50 साल जी रहे हैं तो आप 500 गुना बार उसके बारे में बात कर सकते हैं, Because क्योंकि that carnal mind is like a sore wound. You want to scratch it. वो शारीरिक मन जो है वो एक चिढ़ा हुआ घाव है, It आप उसको loves खुजाना चाहते हैं, to talk evil. वो दुष्ट बातें करना पसंद करता That है। carnal mind loves to talk evil. भौतिक मन जो है उसे दुष्ट बातें करना It पसंद loves है, to gossip. उसे यहाँ वहाँ की बातें करना It loves पसंद to है, talk about somebody's downfall. वो किसी के हार के बारे में बात करना पसंद करता It है, loves to talk about the pain that you're going through. जो दुख से गुजर रहे हैं उसके बारे में Wow, बात give करना me a पसंद chance, करता है। brother. भाई मुझे एक मौका I will bring दीजिए, stories out. मैं You can कहानियां write novels. निकालूंगा, 100 novels from my one life. मेरे एक जीवन में से आपको 1000 कथाएं निकलेंगी। See, we love it, isn't it? We love to talk हमें बात करना बहुत पसंद है, about what agony I went through. You know how they treated me? कितने They दुख start से like हम that, गए। Amma. आपको पता है कितने One दुख से mega गए serial will हमने? come out. एक बहुत बड़ा सीरियल निकलेगा उसमें One से। mega serial will come. You know how they treated me? क्या आप जानते हैं कैसे मेरे साथ वो व्यवहार किया उन्होंने? Please कृपया stop करके prophesying your future. कृपया करके अपने आप के ऊपर भविष्यवाणियां ऐसे करना बंद Stop कीजिए, prophesying your future आपके भविष्य के ऊपर ऐसे बोलना बंद कीजिए, by telling what happened in your past. Don't prophesy it once again over yourself. जो आपके भूतकाल में हो चुका है वो फिर से एक बार आपके ऊपर भविष्यवाणी बोलकर नहीं कीजिए। If at all you want to talk about your problem, make it a testimony. अगर आप आपके कठिनाई के बारे में बोलना चाहते हैं तो उसको एक गवाही बोलकर See, दर्शाइए। this kind of doctrine was not taught to me, ऐसा सिद्धांत मुझे सिखाया नहीं था, but it's the mind of Christ. लेकिन ये मसीह का मन है। Whenever I go through problems, जब भी मैं कठिनाई से and गुजरता according हूँ, to you, might be thinking, oh, our prophet is always on cloud 9. और आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है हाँ प्रॉफिट स्वर्गों में चल रहे हैं। Listen, we सुनिए, go through more problems than you. मैं आपसे ज्यादा कठिनाइयों को से In गुजरता हूँ। fact, do you know, we also live in Bangalore. क्या आप जानते हैं हम भी बैंगलोर में रहते हैं In fact, we have the same traffic. और And हमारे we लिए come early to church, you come late. हम भी उसी ट्रैफिक से गुजरते हैं, हम पहले आते हैं आप लेट आते हैं। Wow, what a miracle. वाह क्या चमत्कार है। See, we live the same life just like you. We have the same cost. हम वही जीवन जीते हैं जैसे Of आप जी living. रहे हैं, वही हमारे यहाँ पे गुजारा का पैसा है जैसे आपका है। We have the same cost of living in Bangalore just like you. जितना खर्चा आपका है उतना हमारा भी है। All problems are same, हमारी except we handle your problems. हमारी कठिनाई भी वैसी है, लेकिन And हम आपकी We कठिनाइयों have से जूझते nobody हैं, handling ours. लेकिन हमारी कठिनाइयों से कोई जूझता नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। But how do we win? लेकिन हम कैसे जय प्राप्त I करते have हैं? a practice. मैं एक प्रकार है या एक प्रक्रिया है, I don't like talking about my problem to anybody. मैं मेरी कठिनाई के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। If possible, I won't even tell it to Naomi. अगर it संभव is in हो that तो मैं पास्टर limit. नेओमी को भी नहीं बोलता हूँ, मुझ तक ही सीमित रखता हूँ। Yeah. You can ask her during the pandemic, we had that mega debt on my shoulder. आप उनसे पूछ सकते हैं महामारी के समय पे हमारे Church ऊपर बहुत closed. बड़ा कर्जा था, चर्च बंद हो चुका था। I never spoke to her one day मैं- about my finances. एक दिन भी उनके साथ आर्थिक चीजों के बारे में बात नहीं किया। I just let her sleep, Man- eat, see, watch TV, do what you want. मैंने बस उन्हें सोने दिया, खाने दिया, जो चीजें करनी है वो करने दी। Hallelujah. हालेलुया। I don't like मुझे नहीं पसंद है talking about what I'm carrying. जो चीजें मैं बोझ ढो रहा हूँ उसके बारे में मुझे पसंद नहीं है बात Praise the करना। Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि I lock it for the day of testimony. मैं गवाही के दिन के लिए उसे कैद करे Anything रखता हूँ। happens to me, I कोई भी- fix it in my heart. On the day of testimony, I will tell. कोई भी चीज अगर मेरे साथ हो रही है तो मैं मेरे मन में तय कर That लेता हूँ day- कि गवाही के दिन बोलूंगा। That day, I will tell what happened. उस दिन मैं बताऊंगा क्या हुआ, Because no man is able to change it. क्योंकि कोई भी मनुष्य इसको बदल नहीं सकता। You know who can change it? आप जानते हैं कौन बदल सकता है? Only I. सिर्फ मैं।
Only I can change it. सिर्फ मैं बदल सकता हूँ, Because God put the answer to the question in me. क्योंकि परमेश्वर ने उत्तर को मुझ में ही रखा है। Any problem that you face, the answer is inside you. कोई भी परिस्थिति का सामना अगर आप करते रहें तो उत्तर आप में ही बसा For हुआ है। some questions, the answer could be humility. कई प्रश्नों का उत्तर शायद नम्रता होगा। For some questions of life, the answer could be prayer. कई प्रश्नों का उत्तर शायद प्रार्थना होगा। For some questions of life, answer could be work hard. कई प्रश्नों का उत्तर शायद कठिनाई से परिश्रम करना होगा। But they are all put inside of us. लेकिन ये सभी चीजें It's हम right में within. बसी हुई है, हम में हैं। You have to do the right thing. आपने सही चीज करनी है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus said, the evil comes from the heart, and from the heart to the mouth, from mouth into your life. तो यीशु ने कहा जो दुष्ट है वो हृदय से आता है, हृदय से मुंह और मुंह से बाहर आपके जीवन में दर्शाता It है। is the same thing that Apostle Paul shows again and says that we have a evil heart called the carnal mind. और यही चीज प्रेरित पौलुस वापस से हमें कहता है कि हमारे पास एक शारीरिक मन है। That carnal mind, that fleshly nature of man is enmity to God. कि ये भौतिक मन या ये शारीरिक मन वो परमेश्वर का बैरी है। It's enmity to God. ये परमेश्वर का बैरी है। That means if God wants to bless you, your carnal mind is thinking about problems of life. इसका ये अर्थ है कि परमेश्वर अगर आपको आशीषित करना चाहता है, आपका शारीरिक मन आपको आपके जीवन की कठिनाई याद दिला रहा है। If God has given healing in Christ, your mind will be thinking about sickness and pain. परमेश्वर ने अगर यीशु में आपको चंगाई दी है, आपका शारीरिक मन आपको याद दिला रहा है आपकी बीमारी या आपके दुख के बारे में। If God has given you prosperity in Christ, your mind will be thinking about how to cut milk, then switch off electricity. One day electricity, next day no lights on. No, we are going to cut off all these things. I am going to master poverty life. परमेश्वर ने आपको वैभव का जीवन मसीह में दिया है और आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि एक दिन बिजली बंद करेंगे, दूसरे दिन कैसे करेंगे You see, this और carnal पैसे कैसे mind, बचाने हैं। this carnal mind is like your enemy living right inside of you. ये जो शारीरिक मन है ये आपका वैरी है जो आपके Yeah. अंदर ही बसा हुआ है। God is thinking of making you the head and not the tail. परमेश्वर सोच रहा है कि वो आपको सर बनाए और पूंछ नहीं। In your mind, you will be competing with the peon. और आपके मन में आप प्यून के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। Everybody around you, you are competing. Hey, God आपके told, आजू बाजू जो है सबके don't साथ watch like प्रतियोगिता। this, watch like this. परमेश्वर कह रहा है ऐसे ना देखिए तो ऊपर देखिए। Hallelujah. हालेलुया। Look at the topmost person in the company. Look at him. और सबसे उच्च स्तर पे जो है कंपनी में उसकी ओर देखिए और I'm gonna overtake you. कहिए कि मैं तेरे ऊपर जाऊंगा। Who are around you are gone by the fire already. और जो आपके आजू बाजू है इर्द गिर्द है वो अग्नि के द्वारा जा चुके हैं पहले ही। But our people are only linear. They only see the next position. लेकिन हमारे लोग जो हैं सिर्फ जो स्थान है उसी के बाजू वाला स्थान देखते रहते From हैं। their seat, they want to go to the next seat. अपने What a seat- warfare is going on now. Warfare. अपनी सीट छोड़ के बाजू वाली सीट में जाना From this चाहते हैं और position, झगड़े हो रहे हैं। from A to B. Warfare. एक स्तर से दूसरा स्तर। I'm युद्ध। telling you, look at Z. मैं कह From रहा हूँ आखिरी अक्षर की ओर देखिए। Hallelujah. हालेलुया। Then B, C, D, all of that, you will just walk on it like bulldozer. और ये बाकी जो अक्षर है उसके ऊपर आप बुलडोजर के भांति चलते जाएंगे। You need to have what the Bible calls an enlarged heart. आपको वो रहना चाहिए जो बाइबल कहती है एक बड़ा हुआ विस्तार किया मन। You need an enlarged heart. एक विस्तार किया मन। A heart that accommodates the plan of God. एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर की हर एक योजना को संभाल लेता A है। heart that opens up to the bigness of God. ये ऐसा हृदय है जो परमेश्वर की महानता को संभाल लेता है। Hallelujah. हालेलुया। So originally God made you a winner. पहले ही परमेश्वर ने आपको विजेता बोलकर बनाया He है। made the lion inside the lion. वो सिंह को सिंह के अंदर बसा चुका He है। made the tree inside the tree. उसने पेड़ को पेड़ में बनाया है। And he made God inside you. और उसने परमेश्वर को Hallelujah. आप में बनाया। हालेलुया। Then he made man. He made God inside him. जब उसने मनुष्य को रचा तो उसने परमेश्वर को अपने आप He में made डाला। us in the image and the likeness of God. उसने परमेश्वर के
रूप में that और we can अस्तित्व में हमें imagine बनाया something and manifest it. कि हम कुछ कल्पना करें और वैसा ही होगा। That we can plan something and bring it forth. हम कुछ योजना करें और वो सामने लाएं। So we need to stop playing religion तो हमने धर्म का खेल खेलना छोड़ना है and we need to start dominating this world. और इस संसार पे अधिकार पाना How? है। कैसे? How? कैसे? It is going to come inside your heart, ये आपके हृदय में आएगा। inside your born again heart. ये आपके नए जन्म पाए हुए हृदय में आएगा। God will paint pictures. परमेश्वर एक चित्रण God will करेगा। put a dream that He has for you. एक सपना आपके लिए जो उसने रचा है वो आपके मन में डालेगा। I tell you, anything God wants to give you, you cannot take it naturally. You need faith to take it. मैं आपको कह रहा हूँ परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो शारीरिक तौर पे आप नहीं Listen. पा सकते तो विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। God told one single man to build a mega ship. मैं आपको कह रहा हूँ परमेश्वर ने एक इंसान को Noah. कहा, एक बड़ा जहाज नूह को Noah. कहा कि वो बांधो। Huge ship. बहुत बड़ा जहाज। Boat would have been easy. एक नौका बहुत अच्छी होती थी But he had to build a ship to accommodate all the animals. लेकिन उसको एक जहाज बांधना पड़ा ताकि सारे जानवर उसमें समा Upper पाए deck, lower deck. और उसके निचले स्तर And then food, और खाना grains. और सभी He had to अनाज store everything. सभी चीजें उसको समा कर He रखनी had to पड़ी make a real size, real ship. और एक बहुत बड़ा जहाज बनाना What a पड़ा। wonder. Single-handedly he is making it. कितना अद्भुत चीज है वो अकेला बना रहा है Larger than life. और जीवन से बड़ा। God doesn't tell us to do something that is puny. परमेश्वर हमें ऐसी छोटी चीज करने नहीं Hallelujah. कहता। God told Moses to go against a kingdom of Egypt. और Oh, परमेश्वर ने मूसा single को man. कहा मिस्र के पूरे देश के विरोध में जाने के। A man with white beard and a stick in his hand. God said, go and drown Pharaoh and his armies. और वो इंसान जिसकी सफेद दाढ़ी है Wow. और एक डंडा लेके वो कहता है और फेरो को जाके कहो पूरे उसके His राष्ट्र को डुबा successor, दो। Joshua, God told, go and destroy all the giants in the land. और उसके बाद में यहोशू जो आया उसने उसको कहा Giants. सभी राक्षसगण के ऊपर विजय प्राप्त करो। What God gives us is larger than life. जो परमेश्वर हमें देता है वो इस जीवन And से बड़ा है it takes faith to conquer it. और विश्वास की जरूरत है उसके ऊपर विजय पाने Amen. के लिए। And आमीन। tell you one more thing, everything you need to be a king and a queen, a CEO, a business owner, a singer, an artist, everything has been put inside of you. मैं आपको कहता हूँ हर एक चीज एक राजा Hallelujah. रानी सीईओ या बढ़कर कोई That भी स्तर पे means- जाना है वो आप में ही है। The stem is in you, the leaf is in you, the branch is in you, the bark is in you, the wood is in you, the fruit is in you, and the seed is in you. इसका ये अर्थ है डाली आप में है, शाखा Hallelujah. आप में है, जड़ आप में है, फल आप में है, पत्ता आप में है, सभी चीज आप में बसाई गई है। हालेलुया। Thank you. Hallelujah. हालेलुया। Say, I have it. कहिए मेरे पास I है, have it. मेरे पास है, I've got success in me. मुझ में सफलता Say, है, I've got Christ in me. मुझ में मसीह है। Christ is like a universe. मसीह एक ब्रह्मांड के जैसा है। Christ is like a world, is like a universe. मसीह एक ब्रह्मांड के जैसा Come on, है। come on, come on, clap your hands. जोरदार तालियां बजाइएगा। I hope you're understanding this. मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रही हैं इस चीज़ Jesus को। Christ is not a human. यीशु कोई इंसान नहीं He है, is a universe. वो एक ब्रह्मांड है। Hallelujah. हालेलुया। He is whole of heaven. वो पूरा स्वर्ग है All the angels put together. और सभी स्वर्गदूत All समा गए creation put और together. पूरी निर्मिति उसमें Gold है and silver put और together. सोना और चांदी इकट्ठा Oceans किए and गए mountains put और together. समुद्र और पर्वत Christ इकट्ठा is किए greater गए than that. और मसीह उससे बढ़कर है And the mystery is Christ in you is the hope of glory. और रहस्य ये है मसीह जो आप में है वो गौरव का पात्र है। Christ in you मसीह जो आप में है is the hope of glory. वो आशा है गौरव की। Christ in you. मसीह जो आप में है Say, I've got it. कहिए मुझ में है, I've got the whole universe in me. मुझ में पूरा ब्रह्मांड समा चुका है, I've got the whole universe in me. पूरा ब्रह्मांड मुझ में समा चुका है। Who is Christ Jesus? कौन है मसीह यीशु? Christ Jesus. मसीह यीशु। Say this. My next offer letter कहिए मेरा अगला ऑफर लेटर is in the Christ in me. वो मसीह यीशु जो मुझ में उसमें My है। business success मैं व्यवसाय को is in the Christ in me. वो है जो मसीह यीशु My में मुझ में open है। doors मेरे सभी खुले दरवाजे is in the Christ in me. वो मेरे अंदर जो यीशु है उसमें If है। you're got caught in problems, अगर आप परिस्थितियों में अटके हुए हैं, if you're imprisoned in life, अगर आप जीवन में कैदी बनाए गए हैं, Christ is the open door. मसीह आपका खुला Hallelujah. दरवाजा है।
He said in John chapter 10, I am the door to the sheep. यूहन्ना 10 में कहा कि मैं वो द्वार हूँ मेमनों के लिए। John chapter 10, यूहन्ना 10, Jesus said, I am the door of the sheepfold. मैं वो दरवाजा हूँ, वो जो खोल देता है सभी मेमनों के लिए। If you are caught in a problem, अगर आप एक कठिन परिस्थिति में Jesus is a हैं, door, you can walk out of it. यीशु वो दरवाजा है जिसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। Hallelujah! हालेलुया। Jesus is the door. I don't have monitors. She doesn't have monitors. यीशु वो दरवाजा है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Precious Jesus, thank you. प्रिय यीशु धन्यवाद। As much as the devil is working on these sound systems, जितना शैतान इन साउंड सिस्टम के विरोध में जा रहा है। okay, let's cut the sound. मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ, आप बैठ सकते हैं। यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी देता हूँ हर एक इंसान को। अभी आपने आत्मा में अभी बना रहना है, आपने आत्मा में अभी बने रहना है। जो भी चीज आपको शारीरिक मन में बांधी रखी है, शैतान ने कोई भी झूठ को आपके अंदर विश्वास डाला है। शैतान ने कोई भी झूठ आपके मन में डाला है, उस पर विश्वास करने लगाया है। यीशु के नाम में उस झूठ को मैं तोड़ता हूं आपके जीवन से, यीशु के महान नाम से। अगर उसने कहा है कि आप हारोगे, तो मैं घोषणा करता हूं आप विजयी हो। अगर उसने आपको कहा बीमार हो, मैं आपको घोषित करता हूं चंगाई प्राप्त किए हुए। सबसे महान बैरी अगर है तो वो शैतान का झूठ जो आप सुनते रहते हैं संसार में। बाइबल कहती है कि शैतान झूठ का पिता है, और एक तौर से वो विरोध करता है जब भी वो झूठ अपने मन में डालता है। क्या आप जानते हैं शारीरिक मन वो शैतान के द्वारा ड्रिप्स के जैसे आता है झूठ बोलकर, और वो झूठ जो है हमारे शारीरिक मन को और ज्यादा सामर्थ्य देता है। लेकिन यीशु के नाम में मैं हर एक शारीरिक मन को नष्ट करता हूँ हाई लाइफ चर्च से, यीशु के नाम से। आपका सर पे हाथ रखिएगा। मैं नष्ट करता हूँ हर एक शारीरिक मन को और दुष्ट मन को, जो भी विचार हैं जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में हैं, वो अलौकिक परमेश्वर के विरोध में हैं या परमेश्वर के मन के विरोध में हैं। मैं उसको तोड़ता हूँ, मैं उसको रोकता हूँ। विश्वास करना, वो झूठ जो शैतान कहता है, आज मैं रोकता हूँ। विश्वास करना, शैतान की प्रणालियों पे विश्वास करना। जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान की एक प्रणाली है। और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड या नौकरी करते हैं वो और ज्यादा महसूस करते हैं इसको। वो 100% आप में से काम निचोड़ के निकालते हैं, और एक ही बिंदु आपको वो देते हैं अप्रिसिएशन, प्रशंसा का या आपकी तनख्वाह का। आपको आप में भूख जगाते हैं और चाहिए, अधिक चाहिए बोलकर। जैसे कि वो फिरो जो है इजरायली गुलामों को खिला रहा था, वैसे 1000 रुपए का काम निकालते हैं और 50 रुपए आपको देते हैं। लेकिन शैतान आपको मन मोहित कर रहा है, वो आपको मन मोहित कर रहा है। अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो 75 रुपए मिलेंगे। वाह, कोई सोच रहा है मैं रात भर काम करूंगा, 2 दिन का काम 1 दिन में खत्म करूंगा। आप जाते हैं और कहते हैं सर मैंने 2 दिन का काम 1 दिन में किया। वाह, बहुत अच्छा, तालियां।
आपके जैसे लोग हमारी जरूरत है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, आप सबसे बेस्ट इंसान हो हमारे पास, और आपकी तनख्वाह आ गई है और 55 रुपए आपको देते हैं। आप अचंभे में हैं, मैंने 100 रुपए का काम किया। नहीं, हम समझते हैं, लेकिन पूरे बाकी के जीवन भर के लिए हम हर रोज आपको 50-50 पैसा देंगे। और आप मोहित हो चुके हैं इन शब्दों के द्वारा। वो टॉम एंड जेरी के कार्टून के जैसे आंखें ऐसे गोल फिरती जा रही हैं, क्योंकि आपने उनके वचन के ऊपर शब्दों पर विश्वास करना शुरू किया है। वाह, शैतान के विश्वासी, आप उनके शब्दों पर विश्वास कर रहे हैं। आपने आपके हृदय में विश्वास करना है, मेरा प्रमोशन तुमसे नहीं तो ऊपर से आता है। अगर आप कोशिश करो रोकने के लिए, तुम जिंदा नहीं रहोगे देखने के लिए। ऐसा मैं सोचता हूं। क्यों? मैं मेरे परमेश्वर के भांति सोचता हूं। फिरो मेरे लोगों को जाने दे। अगर कुछ ड्रामा दिखाएगा, मैं तुझे डुबा कर निकलूंगा। आप कभी परमेश्वर का मन लेकर उसके जैसे सोचना शुरू करेंगे। क्या बाइबल ये कहानी आपको नहीं कहती? तो आप परमेश्वर की जैसे क्यों नहीं सोचते? कहिए, शारीरिक मन को मैं नफरत करता हूँ, मैं इसको जगह नहीं देता। निकल जा मुझ में से, निकल जा मुझ में से। मैं बाइबल सोचता हूँ, मैं आत्मिक ज्ञान सोचता हूँ। मेरा प्रमोशन परमेश्वर की ओर से आता है। मुझे काम से निकाला और आपको सही नौकरी नहीं दी। एक व्यवसाय शुरू कीजिए, उसी इंसान को फिर से बुलाइए और नौकरी दीजिए। आप उसे बुलाइए और 10 साल बाद उसे बुलाकर कहिए, क्या कर रहे हो अभी? मैं एक सीईओ के पद के लिए रुका हूं, मैं दे सकता हूं, आ जाओ। कितनी तनख्वाह चाहिए? सर मैं 50 लाख चाहता हूं। मैं मेरे सीईओ को 80 लाख देने वाला हूं। प्लीज प्लीज कहें, आपका सीवी भेजिए, मैं देखना चाहता हूं आपने क्या काम किया है। हालेलुया। चुनौती लीजिए, आपके जीवन बढ़िए। क्योंकि डाली आप में है, पत्ता आप में है, फल आप में है, शाखा आप में है, सफलता आप में है। शैतान ने बनाई हुई संसार की प्रणालियों से आपकी आंखों को हटा दीजिए और परमेश्वर ने जो प्रणाली आप में डाली है उसकी ओर देखिए। मैं नहीं कह रहा कि काम मत करो, मैं कह रहा हूं संसार की प्रणाली पर विश्वास मत करो। लेकिन यीशु, आप और मैंने संसार में जाके काम करना है। यीशु हर रोज रास्ते पे से जाके सेवकाई करता था। पतरस वो मछुआरा था, मछली पकड़ रहा था। वो हर रोज परिश्रम कर रहा था। वो बहुत साधारण था। क्यों उनको वहां उस दिन मछली नहीं मिली? शायद वो मौसम नहीं था मछलियों का, या सही स्थान नहीं था। वो कहता है रात भर परिश्रम किया लेकिन कोई मछली नहीं मिली। यीशु कहता है मेरी प्रणाली का कोशिश करो, चलो जाते हैं। क्या प्रणाली है यीशु की? अगर आपके हृदय में विश्वास है और पर्वत की ओर आंखें लगा के विश्वास से कहिए, उधर से इधर आओ और वो आएगा। यीशु ने क्या किया? आप क्या सोचते हैं? उसने मछलियों को बुलाया। हालेलुया। उसने पतरस को कहा यहाँ पर वो जाली डालो, और सभी मछलियों को पकड़ लिए। हालेलुया। सभी मछलियां पकड़ लिए, जो भी वो कर सकते थे, पकड़ सकते थे।
यीशु एक नई प्रणाली सामने ला रहा था। ये सभी मछलियां कहाँ थी? वो यीशु में थी। हालेलुया। आपका प्रमोशन कहाँ है? वो मैनेजर में नहीं, बॉस में नहीं, सीईओ पे नहीं, वो मुझ में है। हालेलुया। आपकी चंगाई कहाँ है? आपके अच्छे स्वास्थ्य कहाँ है? वो आपके नए जन्म पाए हुए आत्मा में है। कहिए मेरे नए जन्म पाए आत्मा में है। क्या आपके पास, आप डिप्रेशन में हैं? कहिए मेरे नया जन्म पाए हुए आत्मा में मसीह का मन है, वो पवित्र आत्मा का हर्ष है और स्वर्ग का धार्मिकता है मेरे नया जन्म प्राप्त किए हुए आत्मा में। हालेलुया। हाई लाइफ कलीसिया, क्या आप विजयी हैं? आपका विजय कहाँ है? क्या आप चंगाई पा चुके हैं? आपकी चंगाई कहाँ है? क्या आप कठिन परिस्थिति देख रहे हैं? आपका उत्तर कहाँ है? सब चीज आप में है। वो ज्ञान के तौर पे काम करता है, कभी योजना के तौर पे आता है, या प्रकाशन के तौर पे आता है, या फिर एक दर्शन के तौर पे आता है, या फिर कई बार आदेश के द्वारा आता है, या कई बार बोझ के द्वारा आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के कार्य का प्रति उत्तर कीजिए। कई समय तक पवित्र आत्मा ने आपके मन में डाला, ये व्यवसाय करो, विश्वास करो मुझ पर। कोई भी इतना भला नहीं है संसार में कि कोई व्यवसाय करे और आपको आके दे दे तोहफा बोलकर। परमेश्वर को भीख मांगना छोड़िए, क्योंकि उसने पूरा संसार आपको दे दिया। और क्या देना चाहिए? जो आपके पास है उससे शुरुआत कीजिए। इसलिए यीशु बहुत बार, हर बार दोहराता है, अगर एक राई के दाने समान आपके पास विश्वास है तो शुरुआत करो उससे। हालेलुया। जो चीज आपके पास है उसे शुरुआत करो। हर एक सफलता कहानी जो आप इस संसार में सुनते हैं, वो यहाँ से शुरुआत होती कि वो रास्ते पे थे, जितना छोटा था वहां से शुरुआत की। बहुत सारे सांसारिक लोग बहुत विजय प्राप्त करें आज के दिन, व्यवसाय में या नौकरी के स्थान पे, क्योंकि जो परमेश्वर की क्षमता उनमें है उस पे वो विश्वास करते हैं। वो विश्वास करते हैं कि उनमें सफलता है। हालेलुया। और इसलिए भी क्योंकि वो परमेश्वर के अस्तित्व में, उसकी समानता में बनाए गए हैं। जब भी वो खुद पे विश्वास करते हैं तो कार्यशील होता है। किसी को पूछिए, हमने खुद पर क्यों विश्वास करना है? इसका यह अर्थ है आत्मविश्वास होना। क्यों कार्य करता है ये? क्यों आत्मविश्वास कार्य करता है? क्यों खुद पे विश्वास करना कार्य करता है? क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में हैं। जब भी आप खुद पे विश्वास करते हैं तो आप सच में परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। क्या मैं दोहरा सकता हूं इस प्रकाशन को? जब भी कोई अपने आप पर विश्वास करता है तो सच में परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और उसके ही विश्वास में चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप आशीषित हैं। और कुरकुर करना छोड़ दीजिए और नूह के जैसे योजना करना शुरू कीजिए। लकड़ी लीजिए, नाप कीजिए, उसको तो काटना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर जहाज नहीं बनाएगा, प्रार्थना करने से जहाज नहीं बनेगा। उसने नूह को कहा जहाज बनाने के लिए। जो भी कौशल आप में है उसे बाहर निकालिए और वो काट कर उससे ऊपर काम करना शुरू कीजिए। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे जैसे नूह का किया। आपको वो मजाक कर देंगे या फिर आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे या आपके विरोध में आके आपका खिल्ली करेंगे।
बाहरी तौर पे देखना छोड़ दीजिए, अंदरूनी तौर पे देखना शुरू कीजिए। जो आप में बसा हुआ सफलता है उसके ओर देखिएगा। हालेलुया। दिन आ रहे हैं हाई लाइफ कली से हम 1000 आत्माएं के ऊपर जाएंगे। जब तक हम 1000 गिनेंगे तब तक 3000 हो जाएंगे। परमेश्वर हमें एक बहुत बड़े स्थान पे लेके जाएगा जैसे नूह का जहाज था। आमीन। हम आज की पीढ़ी के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं। भविष्यवाणी के द्वारा, चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा या अनुग्रह के प्रकाशन के द्वारा इस पीढ़ी के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्या आप आशीषित हैं? सफलता कहाँ है? मेरे अंदर है। हर एक चीज मैं वो करूंगा जिससे वो बाहर निकल पाए। मैं तब तक काम करूंगा जब तक कि सफलता बाहर चमक के नहीं निकलती। जब तक सभी आपकी ओर देखकर कहेंगे हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, वो चमकती नहीं, तब तक आप कार्यरत रहें। वो बोरवेल के जैसे उसको खोद कर बाहर निकालिए। हालेलुया। उसे खोद कर बाहर निकालिए। ये बाहरी नहीं है, ये आपके दोस्त के साथ नहीं है, ये वो उस इंसान के साथ नहीं है जो आपको मदद करना चाहता है। आपकी सफलता किसी और के हाथ में नहीं। परमेश्वर ने आपके अंदर उसको रचा दिया जिस दिन आप जन्मे हैं। तभी जब ही आपका नया जन्म हुआ तभी 100 गुना और डाल दिया आपके अंदर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए परमेश्वर को देते हैं धन्यवाद यीशु। आइए परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर का आदर करेंगे हमारी चीजों से, दान से। धन्यवाद यीशु। Clap hands, clap hands. जोरदार तालियां बजाइए ये वचन के लिए। It's time to give your offerings, your tithe. आपका दान और दशमांश देने का समय आ चुका So है।